વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સર્વેને દશેરાની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય. વાલા વૈષ્ણવો, આજે દશેરાના દિવસે શ્રી ઠાકોરજીને જ્વારા ધરાય છે. તે શ્રી સ્વામિનીજીના ચરણ ચિહ્ન જવના ભાવથી ધરાય છે. તો ચાલો તેનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ સમજીએ. કારણ કે આપણા શ્રી મહાપ્રભુજી પણ ચરણ કમલમાં આ જવ ચિહ્નને ધારણ કરે છે અને મૂળમાં શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ છે. તો ચાલો એ યવ ચિહ્નને સમજવાનો રંચક પ્રયાસ કરીએ કે જેમાં શ્રી સ્વામિનીજીનો શ્રી ઠાકોરજી પર વિજય સૂચવ્યો છે. એટલે ઠાકોરજી એ ભાવથી સ્વામિનીજીના ચરણ ચિહ્નના ભાવથી તિલક ધારણ કરે છે. શ્રી વામચરણ 15મું ચિહ્ન યવ. ત્રિતયાત્મક સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભે પોતાનું અતિશય કીર્તિમાનપણું પ્રસિદ્ધ કરવા માટે યવ ચિહ્નને ચરણ કમલમાં ધારણ કર્યું છે. નવરાત્રિમાં 9 પ્રકારના સાધનો ભક્ત 9 દિવસ સુધી એટલે કે 9 વિલાસ કરી પોતાના ભાવની સામગ્રી શ્રૃંગાર પ્રભુને અંગીકાર કરાવી દશેરાના દિવસે 10 જ્વારા શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી મસ્તક પર ધરાવી એમ જતાવે છે કે જે શ્રી સ્વામિનીજી તથા શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણમાં યવ ચિહ્ન છે તેના ભાવથી ધરાવાય છે. તેમાં એવો ભાવ છે કે 10 પ્રકારની ભક્તિ ચરણમાંથી પ્રગટ થઈ છે. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો, 10 પ્રકારની ભક્તિ ચરણમાંથી પ્રગટ થઈ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણમાં 10 અંગુલી છે, 10 આંગળી છે. તે ભાવથી શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી મસ્તક પર ધરી 10 પ્રકારની ભક્તિ નિકુંજ સંબંધી પુષ્ટિરસ રૂપ આપી તેથી પ્રભુ પ્રસન્ન થઈને જ્વારા ધરેલા શ્રી મસ્તક પર ધારણ કરે છે. યવ બધા જ અન્નનું આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે. જેમ ભૌતિક અન્નથી ભૌતિક દેહનો નિર્વાહ થાય છે તેમ લીલાધામમાં આધિદૈવિક સૃષ્ટિના આધિદૈવિક દેહનો નિર્વાહ પ્રેમ બીજ થાય છે. આ પ્રેમ ભક્તિરૂપી અલૌકિક ધાનનો રાજા યવ છે. આ યવ ચિહ્નમાંથી પ્રેમ પ્રગટ થાય છે અને આમ કરીને બધાનો લીલાધામમાં નિર્વાહ થાય છે. સર્વાત્મ ભાવવાળા ભક્તોને પ્રાણ સ્મર આશા વગેરે બધું જ આત્મારૂપ પ્રભુથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી પ્રેમરૂપી અમૃતથી અજર અમર દેહ અલૌકિક લીલાધામસ્થ પરિકરનો બને છે તેમ જાણવું. તેથી શ્રી વલ્લભ પ્રભુની કીર્તિનો લીલાધામમાં પણ પ્રકાશ કરી રહી છે. પૂરો લીલા પર સુધા પ્રેમ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભનું જ યશોગાન કરે છે. યજ્ઞમાં યવનો જ હોમ થાય છે. તેનાથી સત્વગુણ ઉદય થાય છે, મન શુદ્ધ થઈ જાય છે અને સ્વતંત્ર ભક્તિ પ્રેમ લક્ષણા એટલે કે નિર્ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જણાવવા માટે શ્રી વલ્લભ સફેદ ધોતી ઉપરણા પોતાના શ્રીઅંગ પર ધારણ કરે છે. આમ શ્રી વલ્લભના ચરણ કમલમાં યવનું જે ચિહ્ન મહાકીર્તિમાન છે તે જાણે તેના હૃદયમાં લીલા પરિકર સહિત પ્રભુ પધારે છે, કૃપા કરી ભક્તિનું દાન કરે છે, જે 10 પ્રકારની ભક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. પરિણામે જીવ નિકુંજના દ્વારે પહોંચી શકે છે. ક્ષય ન થાય તેવો અલૌકિક અમૃતરસ સદાય પીવે છે. આમ પ્રભુ વશ કરવાનું આ ચરણ કમલ યવ સિવાય બીજું કોઈ જ સાધન નથી. વાલા વૈષ્ણવો, હવે આપણે જવ ચિહ્નનું ધોળ જોઈ અને થોડુંક વિસ્તારથી તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. કીર્તિમાન જવનું તે ચરણ જાણો રે, લીલા અંતરમાં હે શું આણો રે, કૃપા કરી સહુ ભક્તિ દીધી પ્રાણ પ્યારે રે, એ જ ભાવે ધરે છે જ્વારા રે. 10 પ્રકારની જે ભક્તિ કહીએ રે, તે તો ચિહ્ન જવમાં હે સહુ લહીએ રે. વાલાજીઓ શીશ ચરણ સુધી પ્રેમ લીધા રે, 10 ભક્તિ દાન નિકુંજના દીધા રે. જવનું ધ્યાન હૃદયમાં હે કીજે રે, અલૌકિક અમૃત રસ અક્ષય પીજે રે. એ ચરણ વિના બીજું સાધન નહીં જાણો રે, પ્રભુ વશ કરવાને મને આણો રે. આ રીતે આ જવ ચિહ્નનું ધોળ છે. હવે આપણે થોડુંક તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ.
વાલા વૈષ્ણવો, હવે થોડુંક હિન્દીમાં છે, વ્રજભાષામાં છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. શ્રી પ્રભુ ચરણ એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીને સપ્તશ્લોકી में કહ્યું है कि श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि तासु आपको अति सचित कीर्तिमानपनो तो विश्वव्यापी है. कृष्णदेव राजा की सभा में मायावाद को विजय कियो. ताबीरिया सब वैश्वन आचार्यों ने आपको विजय तिलक कियो और जगत गुरु आपको नाम धरायो. ताते आपकी कीर्ति को अति सचित पनो तो अन्य आचार्यों से प्रसिद्ध भयो है और स्वमार्गीय सेवक जन आपकी कीर्ति को गान करे सो तो उचित ही है. परंतु अन्य संप्रदाय के आचार्यों जब आपकी कीर्ति ते मुग्ध मोहित होय के आपको यशोगान करे तब आपकी उत्कर्षता में बाकी कहाँ रहियो. ताते श्री वल्लभ समान और कोई नहीं भयो है. न आगे होय गो ऐसे आपके स्वरूप को निरूपण करवे वाले हो श्रीमद प्रभु चरण पुष्टि पुरुषोत्तम को स्वरूप है. और उनको कहा सामर्थ्य है जो अचिंत्य उग्र प्रतापी ऐश्वर्य वाले श्री वल्लभाधीश के स्वरूप को जान सके. ताते अन्य आचार्यों ते आपकी उत्कृष्टता में कोई संदेह नहीं है. किंच श्री वल्लभ केवल आचार्य ही नहीं परंतु मन वाणी ते अगोचर है. तत्व को ऐसे परब्रह्म स्वरूप है और परब्रह्म को स्वरूप परब्रह्म ही जाने हैं, अन्य सुजानियो नहीं जाए. ताते गीता जी में पृथा पुत्र अर्जुन ने कहियो है कि हे भगवान आपके स्वरूप को आप ही जानो हो, देव दानव मनुष्य नहीं जान सके हैं. अब आगे कहत है यह आपकी कीर्ति को प्रकाश करवे यव चिन्ह धारण कियो है. सो यव चिन्ह सर्वधानियों को राजा है. यह चिन्ह युगल स्वरूप के चरण कमल में ही है. ताते उभय भावात्मक है. नवरात्रि में 9 प्रकार के साधन भक्त 9 दिन ताई देवी पूजन मिश करी अपने भाव की सामग्री श्रृंगार अंगीकार कराए. दशहरा के दिन 10 ज्वारा श्री ठाकुर जी के मस्तक पे धराए. यह जतावत है जो श्री स्वामिनी जी तथा श्री महाप्रभु जी के चरण में यव चिन्ह है. ताते भाव सु धरावत है. तामे यह भाव प्रकट भयो जो 10 प्रकार की भक्ति चरण ते प्रकट भई है. श्री महाप्रभु जी के चरण में 10 अंगुली है. ता भाव ते श्री ठाकुर जी के मस्तक पे धर के 10 प्रकार की भक्ति निकुंज संबंधी पुष्टि रस रूप दीनी तासु प्रभु प्रसन्न होय के ज्वाला धरत है. ताते यव सब अन्न को आधिदैविक स्वरूप है. जैसे भौतिक अन्न सु भौतिक देह को निर्वाह होय है तैसे लीला धाम में आधिदैविक सृष्टि के आधिदैविक देह को निर्वाह प्रेम सु ही होय है. यह प्रेम भक्ति रूपी अलौकिक धान्य को राजा यव है. यह यव चिन्ह में सुप्रेम प्रकट होय है. ता करी सबन को लीला धाम में निर्वाह होय है. सर्वात्म भाव वाले भक्तन को प्राण स्मर आशा आदि सब आत्मा रूप प्रभु ते प्राप्त होय है. ताते प्रेम रूपी अमृत ते अजर अमर अलौकिक देह लीला धामस्थ परिकर को बनियो है. ऐसे जाननो ताते श्री वल्लभ प्रभु की कीर्ति तो लीला धाम में हो प्रकाश कर रही है. सब लीला परिकर सुधा प्रेम स्वरूप श्री वल्लभ को ही यशोगान करत है. यज्ञ में यव को ही होम करत है. ता करी सत्व गुण को उदय होत है. मन शुद्ध हो जाए है और स्वतंत्र भक्ति प्रेम लक्षणा निर्गुण है. सो जताइवे के लिए आप श्वेत धोती उपरना धरत है. रसात्मक त्रिगुणातीत भक्ति को निर्गुण प्रेम लक्षणा भक्ति कहे हैं. आप श्री वल्लभ को मूल स्वरूप पूर्वदल संयोगात्मक त्रिगुणात्मक लीलासु पर निर्गुण है. निर्गुण होइवे से सब रस में प्रधान रस मधुर रस को ही आप भोग करे हैं. यह आशय जताइवे को आप श्वेत धोती उपरना धरत है. सो आप में 9 प्रकार रस को मिश्रण नहीं लीला गुण बिना नहीं हो सके. आपको मूल स्वरूप तो लीला अंतपाती है. अंतपाती कहवे सु संयोगात्मक लीला में युगल के रमण विहार सु प्रकट भई सारभूत सुधा तो सुधा के ही आप भोगता है और ता सुधा को ही आपको घनीभूत स्वरूप है.
जैसे मिश्री में केवल मधुरता है और मिश्री रस को घनीभूत स्वरूप है, तैसे ही आपको मूल स्वरूप केवल मधुर प्रेम सुधा रस को है। ताते भूतल प्राकट्य चरित्र में आपने जो श्वेत धोतियों पण धारण किए हैं सो आपको मूल स्वरूप जतावे के लिए है। और जैसे यव में सब अन्न को समावेश है, तैसे मधुर रस में श्रृंगार रस के सब रस को समावेश है, अथवा श्रृंगार रस के समस्त रस तो सारा तत्व मधुर रस है। श्री वल्लभ मधुराधिपति है और आपके अखिल श्री अंग के रोम रोम में मधुर रस के सागर भरे हैं और सर्व प्रेम भावों को समन्वय मधुर प्रेम भाव में हुए है। प्रेम भाव की परिपक्व दशा में मधुर भाव प्रकट हुए हैं। यह मधुर प्रेम भाव के ही श्री वल्लभ भोक्ता हैं। ताते आप मधुराधिपति कहावे हैं, सो श्री हरिराय चरण एक पद में कहत है, श्री वल्लभ मधुराधिपति मेरे सदा बसो मन यह जीवन धन सब निज जन सु कहत हुटेरे। मधुर वचन और नयन मधुर युग मधुर ब्रोह अलकन की पात मधुर भाल और तिलक मधुर अति मधुर नासिका कही अन जात। अधर मधुर रस रूप मधुर छवि मधुर मधुर दो ललित कपोल श्रवण मधुर कुंडल की झलकन मधुर मकर दो करत कलोल। मधुर कटाक्ष कृपा रस पूरण मधुर मनोहर वचन विलास मधुर उगार देत दासन को मधुर विराजत मुख मृदुहास। मधुर कंठ आभूषण भूषित मधुर उरस्थल रूप समाज अति विशाल जानु अवलंबित मधुर बाहु परिरंभन काज। मधुर उदर कटि मधुर जानु युग मधुर चरण गति सब सुखरास मधुर चरण की रेणु निरंतर जन्म जन्म मांगत हरिदास। यह पद अनुसार आप सर्वांग मधुर प्रेम रस्ते पूर्ण है। यह आपको स्वरूप बहुत विलक्षण है। या को आगे विचार करवे में जीव की बुद्धि यही अलम हो जाए है। आपकी पूर्ण कृपा ते ही आपको मूल स्वरूप मधुर सुधा अग्नि जान्यो जाए है। सो श्री हरिराय चरण कहत है, स्वामिनी भाव भगवत भाव युक्तम आपी विलक्षणम। श्री गोवर्धन धर सर्व रस के भोक्ता है, सो गोवर्धन याग में अन्नकूट भोग करते हैं। ताही प्रकार भूतल की सेवा प्रणाली में भक्ति मार्ग के यज्ञ रूप अन्नकूट तथा नित्य आरोग्य को मंडाण प्रकट करते भय भूतल के विलास में मुख्य आरोग्यनो यह विधि कबहु प्रकट नहीं भई हती। सो श्री यज्ञ भोक्ता श्री वल्लभ ने प्रकट करी। यह संपूर्ण भूतल के विलास के कारण रूप यव को चिन्ह धारण किए हैं, अथवा भूतल में आरोग्य को विलास यव चिन्ह में ते प्रकट भयो है। यहाँ पर स्थूल प्राकृत दृष्टि वाले को यह शंका होई कि यव चिन्ह में भूतल में आरोग्य को विलास प्रकट भयो यह कैसे घटे, ताके समाधान में अलौकिक विषय लौकिक बुद्धि सो नहीं समझियो जाए है। जैसे कहियो है कि दिव्य ददामिते चक्षु दिव्य चक्षुते ही दिव्य लोक को विलास देखियो जाए है, तैसे यह पुष्टि मार्ग को सर्व विलास और विलास की सामग्री सब भावात्मक है। ताते भावात्मक यानी दिव्य बुद्धि सो भावात्मक दिव्य विलास समझ में आ सके है। तामे प्राकृत बुद्धि अप्रयोजन का है। और जैसे आत्मा बिना काहू को जीवन निभे नहीं है, तैसे श्री महाप्रभु जी के संबंध बिना सभी विहार अपूर्ण है। अथवा आप श्री वल्लभ के संबंध बिना युगल स्वरूप के हो ताप की निवृत्ति नहीं। तब भूतलस्थ देवी जीव की श्री वल्लभ के संबंध बिना अथवा श्री वल्लभ के चरण कमल के आश्रय बिना ताप निवृत्ति कैसे होगी। ताते संपूर्ण लीलाधाम और भूतल के विलास में कारण रूप सबके आधिदेविक स्वरूप श्री वल्लभ को ही जाननो। आप श्री वल्लभ के मूल स्वरूप में रति के क्रिया बिना संपूर्ण विहार सिद्ध है। युगल स्वरूप के हो आधिदेविक स्वरूप है। आधिदेवी कहवे युगल यानी प्रिया प्रीतम के आत्मा स्वरूप श्री वल्लभ है। तत्व सूत्र भाष्य के अध्याय प्रथम में
आनंदमय अधिकरण में आनंदमय भगवान की हो आत्मा स्थायी रति भाव कहियो है। रति यानी प्रेम को पर्यायी नाम आनंद है। यह प्रेम सुधा स्वरूप ही द्विधा श्रृंगारात्मक, रसात्मक, लीला परिकर और भगवान की हो आत्मा स्वरूप है। यह प्रेम स्वरूप को ही वेणुगीत के 5 श्लोक में श्री गुढ़ भावो पुष्टि मार्गे परम तत्व कहियो है। जाको पर्याय नाम कृष्णास्य है। ताते श्रृंगार रस की आत्मा स्थायी रति प्रेम होइवेसु। श्री कृष्णास्य स्वरूप श्री वल्लभी प्रिया प्रीतम तथा लीला परिकर समस्त की आत्मा है। ताते श्री हरिराय चरण कहत है, स्वामिनी भगवत भाव युक्त अति विलक्षणम। यह आपके वारे स्वरूप को अनुभव है। सो अनुभव करके विलक्षण सुधा स्वाद में निमग्न भय है। तामे निमग्न होय के पूर्ण प्रमेय बोलते आपको यशोगान करत है। श्री वल्लभ तजी अपनो ठाकुर, कहो कौन पे जइए हो। सब गुण पूर्ण करुणा सागर, जहाँ महारस पइये हो। सब हिनते अति उत्तम जानी, चरण पर प्रीति बढ़इये हो। कानन काहू की मन धरिए, वृत अनन्य एक ग्रहिए हो। आपके स्वरूप की विलक्षणता श्रीमद प्रभु चरण, श्री गोकुलेश जी, श्री हरिराय चरण और पद्मनाभ दास आदि की वाणी में सुप्राप्त करवे योग्य है। अथवा श्री वल्लभ प्रभु युगल स्वरूप के ताप रूप ते प्रगटे है और युगल के ताप निवारक हु है। तापते लीला धाम समस्त परिकर के आधिदेविक स्वरूप श्री कृष्णास्य वल्लभ को ही जाननो। या प्रकार जिनके आप युगल चरण कमल को आश्रय करनो और आपके चरण कमलगत यव के चिन्ह को जो जन चिंतवन करे, सो या लोक ते सर्व प्रकार ते खान पान में सुख पावे। ठोर, मठरी, बूंदी आदि विविध पकवान आदि सामग्री भी प्रभु को आरोगाए के पश्चात अधरामृत को आस्वाद जो पुष्टि सृष्टि के सेवक जन को मिले हैं, सो गोडिया संप्रदाय वारन को कहा। ताते श्री वल्लभ को शरण ही सर्वोत्कर्ष है कि सेवक जनों को भौतिक जीवन भी अक्लिष्ट बनायो। जीव की सभी वासना की पूर्ति होए और दुराराध्य पुष्टि प्रभु को भी प्राप्त करे, ऐसा सुगम मार्ग अन्यत्र कहाँ। और परलोक लीला धाम में श्री ठाकुर जी की संयोग लीला में तथा विप्रयोगात्मक स्वरूप श्री वल्लभ के चरण कमल समीप प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे। प्रभु को यह भक्ति अति प्रिय है। कहते श्री ठाकुर जी को यव के चिन्हते भोग सिद्ध भयो है और कहत है कि श्री वल्लभ प्रभु के चरण कमल अति कोमल है। ताते श्री जी वारंवार पलटत है। आपके चरण कमल के स्पर्श सो जो मधुर रसानुभव होय है, सो तो रसिक शिरोमणि श्री जी ही जानत है। प्रीत की रीत को पेंडो ही न्यारो, की जाने वृषभान नंदिनी, की जाने यह कान्हर कारो। मधुर प्रेम के मूर्तिमान घनीभूत स्वरूप श्री वल्लभ है। रोम रोम प्रति मधुर प्रेम खंडिता के अवधि बहत है। जामे ते गोलोक धाम की संयोगात्मिका लीला में अनंत स्वामिनी जी और तीन के भावात्मक अनंत कृष्ण प्रकट भये हैं। ताते श्री जी को आपके चरण कमल के स्पर्श मात्र ते परम मोद होय है। यह मधुरता को अनुभव करके श्री जी स्वरूप श्रीमद प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने श्री सर्वोत्तम जी, वल्लभाष्टक और सप्तश्लोकी प्रकट किए हैं। जहाँ के महत भाग्य को उदय भयो है, सोई जन यह ग्रंथ में सु, यह स्तोत्र में सु आपके मधुर स्वरूप को अनुभव करेगो। वारी जाओ, बलिहारी जाओ અને શું કરી જાઓ। વાલા વૈષ્ણવો ધ્યાન આપજો। આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપના ધ્યાનમાં જે પાઠ કરીએ છીએ, શ્રી સર્વોત્તમ, સપ્તશ્લોકી અને વલ્લભાષ્ટક, તેની અહીં વાત કરી છે। શ્રીનાથજી 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 ध्यान आपजो। अहीं कह्युं छे के यह मधुरता को अनुभव करके श्रीजी स्वरूप श्रीमद प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने
श्री सर्वोत्तम जी श्री वल्लभाष्टक और सप्तश्लोकी प्रकट किए हैं। એટલે શ્રી ગુસાઈજી એ શ્રીનાથજીનું જ બીજું સ્વરૂપ છે। શ્રી ગુસાઈજી આ 3 સ્તોત્રો પ્રકટ કર્યા છે, તેમાં પોતે કરેલા મધુર અનુભવ તેમાં દર્શાવ્યા છે। એટલે જેના મહદ ભાગ્ય હશે ને, જેના ભાગ્યનો ઉદય થયો હશે, તેને આ ગ્રંથમાં આ મધુરતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થશે અને તેને આ પાઠ કરવાનું મન થશે। भाग्य बिना तो प्राप्त वस्तु को भी भोग नहीं हो सके हैं। लीला ते बिछुरे देवी जीव अपने प्राणनाथ के वियोग में अहर्निश तड़फे हैं, ताके भाग्य में यह मधुर प्रेम स्वरूप को अनुभव है। सोई जन उपरोक्त त्रिविध ग्रंथ में ते अपनी सर्वस्व निधि प्राप्त कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी रति संग्राम के महायोद्धा हैं, अमोघ वीर्य हैं, अच्युत हैं, परंतु श्री महाप्रभु की कानीते आपके सेवन के वश हो रहे हैं। स्वयं श्री महाप्रभु जी के वश हो रहे, तामे कहा आश्चर्य। आप श्री वल्लभ रस संपत्ति के दाता हुए सो सगळे निकुंजस्थ भक्तों को आप अति प्रिय हैं। सब लीला परिकर प्रसन्न रहत है, तासु आप सबको सुखद और प्रिय है। सबके मनोरथ कामना पूर्ण करवे वाले हैं, ताते आपको नाम पूर्ण आनंद पूर्ण काम है। श्री महाप्रभु जी की हृदय रूप शय्याम ते अनंतपने शय्या में अनंतपने अनंत प्रकार की रहस्य लीला हो रही है। ध्यान आपजो, श्री महाप्रभु जी की हृदय रूप शय्या में એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના હૃદય રૂપી શૈયાજીમાં અનંત પ્રકારના રહસ્ય લીલા થઈ રહી છે। તાતે શ્રી વલ્લભ बिना श्रीजी नहीं रह सके, तैसे श्रीजी बिना श्री वल्लभ नहीं रह सके। श्रीजी बिना श्री वल्लभ नहीं रह सके, ताको आशय यह है कि जो श्री वल्लभ सुधा रूप ते आधेय स्वरूप है और श्रीजी आधार स्वरूप है, ताते आधेय आधार बिना नहीं रह सके। तामे स ऐसोग्नि वैश्वानरो यतः पुरुष यो है न पुरुष विदम पुरुषांतरे प्रविष्टितम वेद, यह श्रुति प्रमाण है। लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि। आधिदेविक लक्ष्मियों को कलानिधि कृष्ण के साथ जो विहार है, तो सब श्री वल्लभ हृदयस्थ है। ताते सबके मूल स्वरूप श्री वल्लभ विरह अग्नि सुधा की सुभग मूर्ति बिना, ताकि कृपा बिना कछु प्राप्त नहीं होए। जैसे गोपालदास जी को श्री विठ्ठले सुधाते दान, तैसे पद्मनाभदास आदि को श्री वल्लभ सुधाते दान। अपन को तो या समय श्री वल्लभ को परोक्ष पनो है। ताते आपकी वाणी तथा आपके स्वरूप को तथा मार्ग को बोध अत्यंत दुर्बोध है। सो दुर्बोध होइवे, ताही श्री विठ्ठलेश प्रभु ने अष्टोत्तर शतनाम कृपा करी प्रकट कियो है। श्री सर्वोत्तम जी के सतत पठन सु श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता होएगी। प्रसन्न होए के हृदय में पधारे, तब भक्ति मार्गाप जमार्तंड रूप ते दुर्बोध को सुबोध कर दे हैं। श्री वल्लभ की प्राप्ति प्रमाण द्वारा और प्रमेय द्वारा उभय प्रकारे होए है। तामे प्रमेय द्वारा श्रीमद दमला जी की कृपा सो तथा आप श्रीमद दमला जी के सम्यक आश्रय सु होए, और प्रमाण द्वारा श्रीमद प्रभु चरण श्री गुसाई जी की कृपा सु होए। तामे प्रमेय को अधिकार बहुत दुर्लभ जानो, कारण के प्रमेय में तो आप श्री वल्लभ को भावात्मक अमूर्त घनीभूत सुधा स्वरूप ही जीवन के अवलंबन रूप हैं। एक क्षण और दर्शन की योग समझाए है और सर्व परित्याग पूर्वक व्यसन भाव की काष्ठापन्न दशा भोग रहे हैं। जैसे जन प्रमेय के अधिकारी हैं, प्रमेय को साक्षात्कार स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, ताकू प्रमेय कहे है। यह प्रमेय में अधिकार जब होय के पंच पर्वा विद्या की निवृत्ति होय, पश्चात आधिदेविक लक्ष्मी भाव को दान होय, पाछे दृढ़ स्वरूप शक्ति होय, व्यसन भाव होय, तब प्रमेय सिद्ध भयो जानिए। जहाँ ताई देहाध्यास आदि प्रपंच की विस्मृति नहीं भई है, महाताई प्रमेय को अधिकार प्राप्त नहीं होय, अथवा प्रेमासक्ति व्यसन भाव के क्रम ते रसात्मक स्वरूप के प्राप्ति की जो प्रणाली है, सो भूतल लीला संबंधी है, और सो साधनात्मक प्रणाली ते श्री वल्लभ की प्राप्ति हुई है। तदपि श्री वल्लभ झा के लिए करुणा करे, ताकू यह प्रणाली अतिरिक्त फल को दान करने में समर्थ है। या प्रकार के दान में आपको सर्वतंत्र स्वतंत्रपनो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम विरुद्ध धर्माश्रय ऐश्वर्य है।
सो आप अपने स्वतंत्र पूर्ण प्रमेय बलते अपने स्वकीय जन को पुष्टि चतुर्थ पुरुषार्थ रूप कृपा भरी है, क्षण ते क्षण मात्र में सिद्ध करवे समर्थ है और ताहि क्षण लीला उपयोगी देह दान करके लीला धाम में प्रवेश करावत है। और जहाँ मार्ग मर्यादा ते फल दान करवे की आपकी इच्छा है अथवा प्रमाण द्वारा फल दान करवे की इच्छा है, ऐसे जन में प्रेम आसक्ति व्यसन की प्रणाली ते संघात को विरहात्मक सिद्ध करके पाछी आप अपने अदेय स्वरूप को दान करत है। सो प्रभु की इच्छा कौन प्रकार ते दान करवे की है, सो तो जीव की समझ ही नहीं आई सके है। ताते साधन दर्शन वारेन को प्रेम आसक्ति व्यसन भाव की प्रणाली ते अर्थात या प्रकार की प्रणाली रूप प्रमाण मार्ग ते चलनो हितकर है। और श्रीमद प्रभु चरण की जो श्री वल्लभ स्वरूप संबंधी वाणी है सो प्रमेय रूप प्रमाण है। सो श्री सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टक सप्त श्लोकी यह तीन में श्री वल्लभ को यशोगान है। नाम रूप गुण द्वारा आपके स्वरूप को ज्ञान करायो है। ताको अहर्निश गुणगान करवे सु आप श्री वल्लभ हृदय में विराजे हैं। आपके यशोगान करवे वारेन के हृदय में आप विराजते होय वेसु स्व यशोगान संरष्ट हृदयाम भोज विष्टरह यह नाम प्रकट कियो है। आपको जो यशोगान है सो पीयूष यानी अमृत है। अमृत के पान कर्ता को देहादि अध्यास विस्मरण करावे है और आदि देविक अजर अमर देह की प्राप्ति करावन की यह अमृत को सहज स्वभाव है। और यशोगान ते आप जब हृदय में पधारे तब प्रेम आसक्ति व्यसन भी सिद्ध हो जाए है। या में कहा आश्चर्य, कारण के प्रेम आसक्ति व्यसन के मूल अधिष्ठान श्री वल्लभ है। ताते श्रीमद प्रभु चरण की वाणी को आश्रय करके आपको यशोगान करवे सो प्रमाण द्वारा ही आपके मूल सुधा स्वरूप की प्राप्ति हुई है। श्रीमद प्रभु चरण ने आप श्री वल्लभ के मूल यानी कृष्णासी सुधा स्वरूप को जो अनुभव कियो है सोई तीन्यों ग्रंथ में तीन्यों स्तोत्रों में एटले सर्वोत्तम वल्लभाष्टक ने सप्त श्लोकी में वाणी द्वारा प्रकट कियो है। सो वाणी में आदर भाव राखवे सो श्री गुसाई जी कृपा करी के अपनो जो अनुभव स्वरूप है ताको दान करत है। और श्री विठलेश चिंतवन नाम के ग्रंथ में श्री हरिराय चरण आज्ञा करे है कि जैसे श्री वल्लभ हृदय दान करवे में समर्थ है तैसे श्री विठलेश प्रभु को हो जान तो श्री वल्लभ को अचिंत्य अनंत शक्ति युक्त जो महिमा है सो समस्त ऐश्वर्य श्रीमद प्रभु चरण में स्थापित कियो है। और तीनों ग्रंथ द्वारा दया सागर श्री प्रभु चरणे वल्लभी अंतरंग जन को अदय स्वरूप श्री वल्लभ को वाणी स्वरूप सु दान कियो है। वाणी में भावात्मक स्वरूप विराजमान है सो भाग्यवान जन को ही यह रहस्य स्फुरित हो जाए है। यहाँ एक निगूढ़ रहस्य यह भी समझवे को है, श्री वल्लभ को एक नाम पतित पावनाय नमः है, तैसे श्रीमद प्रभु चरण के 108 नाम में एक नाम महापतित पावनाय नमः है। ताको आशय श्री वल्लभ के सर्वज्ञ स्वरूप से जो जीव पतित है ऐसे पतित जीव को भी दया सागर श्री विठलेश प्रभु स्वयं की वाणी द्वारा श्री वल्लभ के मूल सुधा स्वरूप को दान करत है। सर्वज्ञात श्री वल्लभ को मूल सुधा स्वरूप ही सबसे ऊपर महान सर्वोत्कर्ष अचिंत्य महिमा वारे हैं। यह स्वरूप जन को ज्ञान नहीं ताको ही महापतित कहियो जाए। ताको ज्ञान त्रिविध ग्रंथों द्वारा कराए के सर्वज्ञात श्री वल्लभ के स्वरूप को सेवन भजन स्मरण गुणगान श्री विठलेश प्रभु ने प्रकट कियो। ताते पंचम कुमार श्री रघुनाथ जी नाम रत्नाख्यान में आपको नाम महापतित पावनाय नमः महापतित पावनाय नमः यह नाम प्रकट किए। ताते आधुनिक वल्लभ सृष्टि के लिए तो यही परम हितकारी है, कारण के देहाद्यास जिनके छूटे नहीं है ताके लिए उपरोक्त प्रणाली के ते चलने फल साधक है। और गोपीजनों के मन मद सु प्रभु अंशर हित भय है। पश्चात गोपीजनों ने अन्वेषण कियो तो प्रभु प्रकट नहीं भय। तब सब गोपीजनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि हरि को गान प्रिय है। ताते प्रिय की प्रसन्नता के लिए और अपने दोष की निवृत्ति के लिए गुणगान ही करनो ऐसा निश्चय करके श्री यमुना जी की पुलिन में आए के सब मिलके प्रणय वेदना युक्त प्रियतम को रिझावे वारो प्रणय भाव युक्त गान कियो। तैसे आधुनिक वल्लभी सृष्टि को
अपने प्राणनाथ प्रेमदेव श्री वल्लभ को रिझाइवे के लिए इनको यशोगान करनो और सेवाफल ग्रंथ की विवृत्ति में श्री हरिराय चरण ने आज्ञा करी है कि आधुनिक सृष्टि को पुष्टि मर्यादा में अंगीकार है, सो जितनी मर्यादा तितनो साधन करना आवश्यक है। यहाँ पर साधन में सेवा स्मरण गुणगान स्वरूप चिंतन आदि है। तामे तापात्मक गुणगान सत्वरे फलोन्मुख कराइवे वारो है, ऐसा वर्तमान समय दिखे है। श्री हरिराय चरण ने शिक्षा पत्र 11 में आज्ञा करी है कि गुणगान, दुख भावन, दीनता और त्याग यह चतुर्थ साधन सिद्ध भक्तन के कर्तव्य रूप है। स्वरूपात्मक गुणगान से अर्थात स्वरूपाशक्ति सहित गुणगान से बहुत काल से विछुरे अपने प्रियतम प्रभु की स्मृति होए है। फिर प्रभु परोक्ष होए सु ताकू साक्षात मिलवे की अभिलाषा सु दुख होए है। यह दुख सु दीनता होए है, दीनता सु प्रसन्न भय प्रभु हृदय में सु प्रकट होए। समग्र प्रतिबंध दूर कर अपनो स्वरूपानंद को दान कर लीला लोक में प्रवेश करावत है। ताते स्वरूपात्मक गुणगान सत्वरे प्रभु को प्राकट्य करावे वारो है। अब श्री सर्वोत्तम जी को सतत पठन करनो वेहु गुणगान रूप है और तीनों ग्रंथ की टीका को अवलोकन करी आपको स्वरूप ज्ञान प्राप्त करोगे। करनो सो स्वरूप ज्ञान से महात्म्य पूर्वक सुदृढ़ स्नेह ते आपके स्वरूप माधुरी को चिंतन ध्यान करनो। यह न बने तो आपके नाम को चातकवत अनन्य वृत्सु प्रिय वियोग दुख की व्यथा भरे रटन करने रहनो। ताको ही महोदार चरित्रवान स्वामी गुणगान मान चलेंगे। श्री वल्लभ नाम ते हो अगाध रस भरियो है। ताते श्री हरिराय चरण कहे है श्री वल्लभ नाम अगाध है, जहाँ तहाँ मत बोल, जब हरिजन ग्राहक मिले ता आगे तू बोल। उपरोक्त साधनों में बुद्धि की निश्चयता पूर्वक सतत सानिध्य रहे सो आप निश्चय फलदान करेंगे, यहाँ में संदेह नहीं है। कारण के साधनों में निश्चय होते ही आपके स्वरूप में निरोध कराई वारी आपकी कृपा शक्ति को कार्य सारू हो जाए है और सबके नाम को कैसो प्रभाव है। सो श्री हरिराय जी ने एक पद में वर्णन किए हैं। भोर भये भाव सो ले श्री वल्लभ नाम, हे रसना तो और वृथा बके क्यों निकाम। सेवा रस स्वाद पाए वे निषदिन गुण गावे, और सब बिसरावे यह मन आठो याम। हरिवस छीन हिम ते होत स्फुरत सघड़ो भक्ति मार्ग, रूप हृदय बसे अरुरस समूह धाम। रसिकन कछु और करे इन ही में भाव धरे, अति रस अनुपान करे और कपट वाम। एटले सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो, याही में गोकुल, याही में वृंदावन, याही में व्रज मंडलो, सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो। એટલે આપણને બીજું કાંઈ ન ફાવે તો કાંઈ વાંધો નહીં, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય કરી શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનું સેવન કરી એમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું અને એટલું પણ ન થતું હોય તો દ્રઢ ચરણના કેરો ભરોસો એક આ પત્ર દયારૂઢ થઈ જાય તો પણ આપણો બધા જ કાર્યો સિદ્ધ થઈ જાય। આ રીતે આજના સત્સંગને અહીં જ વિરામ આપીએ। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। આ સત્સંગ કરવાનો હેતુ એક જ છે કે વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ એટલે પ્રભુ સ્વરૂપ બદલી બદલીને પધારે છે। આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ એટલે શ્રી વલ્લભ પણ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ છે। શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું મૂળ સ્વરૂપ સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ છે। એટલે જે સ્વરૂપમાં આસક્તિ હોય તે સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું અને ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય રાખવો। જય શ્રી કૃષ્ણ।